جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس وقت ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کریں، خاص طور پہ خواتین اگر یہ سوچ رہی ہیں تو وہ کون سے 2-3 ایسے سکلز ہیں، 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو وہ سیکھ لیں تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کر سکتی ہیں؟ دا ایزی وے اب تو یہ میں ایز سچ میں سب کو کبھی سجیسٹ نہیں کرتی کہ فری لانسنگ کو ایز اے کیریئر لے، کیونکہ اٹس اے پارٹ ٹائم ورک. آپ پارٹ ٹائم اس پہ کام کریں، گریجولی اپنی اسکلس پہ کام کریں. ایک اسٹیج پہ آئے کہ آپ کی اسکلس اتنے پالش ہو یا آپ کی انکم اتنا ہو رہا ہے کہ آپ 3 منتھ 4 منتھ کی اپنی سیونگس کر سکتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو پلیٹ فارمس ہیں جو ہم نارمل زندگی میں 5 to 6 hours پر ڈے یوز کرتے ہیں، انہیں کے تھرو آپ ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، ہماری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آئیں اور ان کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے جس میں کوئی لرننگ ایسپیکٹ بھی ہو اور کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ جد و جہد بھی نظر آئے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کیا ہو جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی کمپنی بھی ہے ماؤنٹین شاپ اور ڈیجی فرینڈس کے نام سے، جس کی یہ فاؤنڈر بھی ہیں، سی ای او بھی ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف ان کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا اور آج جو ان کی کمپنی ہے وہ کیا کیا سروسز دے رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی بے شمار اچیومنٹس ہیں، سرٹیفکیشنز ہیں، ان کے بارے میں بھی آج ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم عزیزہ صالح صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ وعلیکم السلام. میم، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے آفٹر ایف ایس سی کی تھی، شروع کی تھی. جب ایف ایس سی میں یہ تھا کہ میرا میتھس فیل ہوا تھا تو آئی واز 17، تو اس ٹائم میرے پاس کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں تھا، تو میں نے فری لانسنگ کو ایز اے لائک ایک ٹریننگ کی تھی. پھر وہاں سے میں نے پراپر طریقے سے اس پروفیشن کی طرف میں آ گئی. صحیح. اچھا میم، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں اچھی لگی آپ کو؟ مطلب جب آپ نے انٹر کیا اوبویسلی کچھ تو آپ کو اچھا لگا ہوگا، اس میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ ایکچولی جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز سچ تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بٹ میرے پاس آپشن بھی تھا، لائک یہ ٹرینڈنگ چیز تھی تو مجھے لگا کہ اس میں شاید میں کوئی اچھے کام کر سکتی ہوں. اور دوسرا یہ تھا کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو تو ایک کنٹینیوس فلو ہوتی ہے، تو آپ اپنی اسکلس پہ یا کوئی دوسرے تیسرے کام پہ آپ اتنا توجہ نہیں دیتے. تو جب میں نے ایف ایس سی کا پیپر دیا اور میرا میتھس ڈراپ ہوا تو اس کچھ ٹائم میں فری رہی، تو اس دوران میں نے پھر ایک چھوٹا سا ٹریننگ لیا، میری انٹرسٹ بلڈ ہو گئی، میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کی. اور یہ کوئی 16-15 کی بات ہے جب اوڈیس کا ٹائم تھا، تو تب میں نے مارکیٹنگ شروع کی. تو جیسے ہی میں نے 1-2 مہینے کیا میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا اور مجھے آگے اس میں فیلڈس، کیونکہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا چیز. جب میں نے اسٹڈی کیا، بیسکس میں نے لرن کی، تو مجھے اس میں آگے کا مجھے کیریئر نظر آیا کہ اس میں فیلڈ ہے، اس میں جا سکتے ہیں اور کام کیا جا سکتا ہے. اچھا میم، مینلی آپ جو ہے وہ کس پلیٹ فارم پہ زیادہ اس کو کرتی ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پریکٹس کرتی ہیں؟ انسٹا پہ، فیس بک پہ، کس پہ؟ بیسیکلی جب انیشیل لیول پہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا، میں اپ ورک اور فائور پہ میں کام کرتی تھی، جو فری لانسنگ پلیٹ فارمس ہیں. دین گریجولی آئی بلڈ اپ مائی لنکڈن پروفائل بلڈ کیا میں نے. اس کے بعد میں نے موو کیا کراچی، تو کراچی میں گئی تھی شارٹ ڈپلوما کے لیے ان بایو میڈیکل انجینئرنگ. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی گوگل سے، فنڈامنٹل ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، گوگل ایڈورڈ، اور 3-4 سرٹیفکیشنز کی پروفیشنل. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز فرسٹ فرام جی بی. یہ 2017-18 کی بات ہے کہ میں نے اپنی سرٹیفکیشنز کی اور کراچی میں ہی میں نے پھر آن لائن ورک شروع کر دی. تو میم، آپ کو چیلنجز کیا فیس کرنے پڑے جب آپ نے آن لائن ورک سے جب اپنا ادارہ بنانے تک، اپنی کمپنی بنانے تک کا سفر، اس دوران وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا؟ اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ ایک تو کوئی نیو چیز میں انٹر ہو رہی تھی، اور جب بھی آپ کوئی نئی کام اسٹارٹ کرتے ہو، ایک تو مینٹورشپ نہیں تھا کیونکہ میں سیلف لرنر، ہر چیز میں نے یوٹیوب سے سیکھا ہے، میں نے ڈفرینٹ کورسز لے کے میں نے سیکھا ہے. تو انیشیل میں فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، جابس کس طرح ہنٹ کرنا ہے، کمپنیز کے ساتھ کس طرح اپنی پیکیجز سیٹ کرنے ہیں، کتنے ٹائم کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ سارے ایوری سنگل تھنگ از چیلنج ان انیشیل اسٹیج. میم، آپ کی جو کمپنی ہے ماؤنٹین شاپ اور ڈیجی فرینڈس کے نام سے، یہ ابھی کرنٹلی کیا کیا سروسز دے رہی ہیں اور کس ڈومین میں کام کر رہی ہیں؟
Basically, Mountain Shop is an e-commerce platform through which we are providing medium to all those women in remote area of Gilgit-Baltistan and Chitral to sell their product and services online or digitally. It's not only about to selling their product, it's about to prepare them for the challenges ahead and make them financially or emotionally independent. माउंटेन शॉप का जो मेन मकसद यही है कि एवरी सिंगल वुमेन जो इलिटरेट है या वो काम उनके पास पोटेंशियल है, स्किल्स है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी अर्निंग भी कर सके और इमोशनली और फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट करना हमारा फोकस है. और जो सेकंड डीजी फ्रेंड के नाम से है, इट्स बेसिकली मेरी जो इंटरेस्ट है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है डिजिटल मार्केटिंग की, ये उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर मैंने ये इस्टेब्लिश किया था कि हम ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि बच्चे आके वहाँ से हमसे लर्न भी करें, फ्री कोर्सेज भी लें, मार्केटिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, और प्रोजेक्ट्स हम ऑनलाइन अर्न करते हैं, लोकल प्रोजेक्ट्स भी, इंटरनेशनल. इट्स टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बट मैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी कहती हूँ. मैम, इसको इस कंपनी को जब आपने बना लिया, इसके बाद क्या चैलेंजेस देखे आपने? ओके, इनिशियल लेवल पे जब मैंने माउंटेन शॉप हमने इंट्रोड्यूस किया था तो उसको बेसिकली मैंने ई स्टोर बनाया था. तो ई स्टोर बनाने के बाद जब मैंने रिमोट एरिया जीबी के स्पेशली मैंने रिमोट एरियाज़ विज़िट की तो पता चला कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे फीमेल्स को स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, वो अपनी स्किल्स शोकेस करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें. क्योंकि जब हम जीबी के अंदर देखते हैं तो बहुत स्मॉल बिजनेसेस है जो 3-4 साल जिस स्टेज पे थे अभी भी उस स्टेज पे हैं, और उसका वजह उसके पीछे ये है कि उनको बेसिक बिजनेस स्किल्स का नहीं पता, बिज़नेस को एक्सपेंड किस तरह करना है, अपनी पैकेजिंग प्राइसिंग पे किस तरह काम करना है, प्रोडक्शन किस तरह बनाना है. तो इन सारी चीज़ों पे उनको कोई आइडिया नहीं है. वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको बजट का नहीं पता. इवन दे डोंट नो कि रॉ मटेरियल जो वो यूज़ करते हैं वो कितना स्पेंड करते हैं उस पर. जब वो सेल करते हैं तो वो रॉ मटेरियल जितने लिया था उसी प्राइस पे सेल करते हैं. एक तो ये वजह था, और चैलेंज में ये फेस कर रही थी कि उन फीमेल्स को कन्वेंस करना, उन फीमेल्स को जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, सोशल मीडिया का इतना कोई फ्लो नहीं है, उनको कन्वेंस करना और इस तरफ लेके आना कि आप ऑनलाइन भी कमा सकते, ऑनलाइन सेल कर सकते. तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग. अच्छा मैम, जो लोग आना चाहते हैं, इस वक्त हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनके जहन में आ रहा है कि हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करें, ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर ये सोच रही हैं, तो वो कौन से 2-3 ऐसे स्किल्स हैं, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो वो सीख लें तो वो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकती हैं? सर, द इजी वे अब तो ये मैं मैं सबको कभी सजेस्ट नहीं करती कि फ्रीलांसिंग को एज ए कैरियर ले, क्योंकि इससे पार्ट टाइम वर्क, आप पार्ट टाइम इस पे काम करें, ग्रेजुअली अपनी स्किल्स पे काम करें, एक स्टेज पे आए कि आपकी स्किल्स इतने पॉलिश हो या आपकी इनकम इतना हो रहा है कि आप 3 मंथ 4 मंथ की अपनी सेविंग्स कर सकते हो, देन आप इस तरफ आ सकते हैं. और फीमेल्स को मैं ये कहूँगी कि आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इवन यू आर यूजिंग बिजनेस व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थ्रू सोशल मीडिया एक सिंपल पेज के थ्रू आप अर्निंग कर सकती है. द थिंग इज़ दैट कि आपने फोकस होके और सही तरीके से बेसिक चीज़ों को लर्न करना है. बेसिक इनकी जो कॉन्सेप्ट होती है कि फेसबुक पेज को हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करना है, क्योंकि आप घर में बैठ के आप व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, कैटलॉग्स बना सकते हैं, कैटलॉग्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे पास, जो प्लेटफॉर्म्स है जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में 5 to 6 आवर्स पर डे यूज़ करते हैं, उन्हीं के थ्रू आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं. मैम, फ्यूचर में आपका क्या गोल है? आने वाले वक्त में क्या आप अपनी कंपनी को मज़ीद एक्सपेंड करना चाहती हैं या क्या प्लान है आपका? सर, फ्यूचर का मेरा प्लान ये है कि माउंटेन शॉप, क्योंकि अब मेरे पास 2 पार्ट्स है. मैं ये चाह रही हूँ कि हम जिस ट्रेडिशनल वे में जा रहे हैं वो हम स्पेशली वुमेंस कि वो डिजिटल टेक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाए, अपनी तरफ से इनोवेशंस करे, उनको मेंटली इतना प्रिपेयर हम करें, ऐसे गाइडिंग दे, इस तरह ट्रेन करें कि वो अपने काम स्टार्ट करें, और जो डिजिटल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड की यूज़ है टेक्नोलॉजी के साथ उनको एफिलिएट करें. क्योंकि यू नो दैट कि जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स है वो यही है कि अब जो इस साल की उनकी गोल्स है कि वो टेक में वुमेंस को इक्वली पार्टिसिपेट कराना है. जब तक वो टेक इंडस्ट्री में वुमेंस नहीं आएंगे, टेक इंडस्ट्री मूव नहीं करेगा, और जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स है वो अचीव नहीं हो सकते. तो मेन फोकस ये है कि जो जितने भी वुमेंस है, चाहे वो रिमोट एरिया के हो, सिटीज़ के हो, उनको टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएट करना और टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ करना है, इस तरफ लेके आना मेरा गोल है. अच्छा मैम, ख़वातीन की जिस तरह आपने बात की, आप क्या समझती हैं कि अगर ख़वातीन भी आती हैं टेक की फ़ील्ड में या डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में, तो इससे उनको पर्सनली कितना फ़ायदा होगा?
पर्सनली ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमारी जो डिजिटल सिक्योरिटीज़ है, जिसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगी स्पॉइल हो रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में डिप्रेशन में जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें वो डिजिटल सिक्योरिटी से एफिलिएट होंगे कि यार हम जो वर्ल्ड डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को ख़ुद को किस तरह सिक्योर करना है। दूसरा, जब वुमेन टेक में इन्वॉल्व होगी, हमारी इकोनॉमिक लेवल भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल वे में देखते हैं तो इंडस्ट्रीज़ को अगर हम कई सालों से देखते हैं तो लोग कहते हैं कि टेक में मेल डोमिनेंट है, ज़्यादातर मेल ही जाते हैं, मेल ही सक्सेसफुल करते हैं। बट लास्ट 2 to 3 ईयर्स हमने ऐसे टेक एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को देखें कि जो अभी टॉप पे है। इवन पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो 5-6 ऐसे टेक एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है कि जो बहुत अच्छी तरीके से इंस्टीट्यूशंस को लीड कर रहे हैं। तो वुमेन का टेक में आना लाजमी है, क्योंकि वुमेन्स की बेसिकली ये होता है कि घर में भी बच्चों के साथ क्यों इंटरेक्शन होती है, टेक्नोलॉजी की यूज़ का अगर उनको पता होगा, सिक्योरिटीज़ को पता होगा, तो बच्चों को भी वो सही तरीके से ट्रेन कर सकते हैं और ख़ुद भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तो वो घर बैठ के अर्न भी कर सकते हैं और अपडेट भी रह सकते हैं। मैम, आपकी थ्रू आउट लाइफ इंस्पिरेशन कौन लोग रहे, और वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस सारे प्रोफेशनल फील्ड में? बेसिकली इंस्पिरेशन एज सच तो एवरी सिंगल वुमेन इज़ माई इंस्पिरेशन, जो काम करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, और हर वो वुमेन जिसने मुझे सपोर्ट किया है, जिसने मुझे कन्विंस किया। बहुत सारी ऐसे एजुकेटेड वुमेन्स हैं इनसाइड माई टाउन, इनसाइड माई सिटी और आउट ऑफ माई सिटी, जिनने मुझे कन्विंस किया है। और बहुत सारे मैंने एक्सलेट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किए, वुमेन लीडरशिप फेलो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किए। उनमें जो मेंटोर्स थे या उनमें से जो मुझे फैसिलिटेट कर रहे थे, दे आर माई इंस्पिरेशन। और घर में जो सपोर्ट मुझे ज़्यादातर मिली है वो मेरी भाई और भाभी से मिली है। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? हर इंस्टीट्यूशन का अपने एक पॉजिटिव रोल होता है सोसाइटी में। तो सेम कासिम अली शाह की जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ या जब मैं थ्रू आउट एक्टिविटीज़ देखती हूँ, तो इट्स ए लाइफ चेंजिंग लेसन फॉर एवरी सिंगल पर्सन जो लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं, जो चीज़ों को सही तरीके से समझना चाह रहे हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी इश्यूज़ रिजॉल्व कर रहे हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैम, आखिर में यूथ को, ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ और ख़वातीन को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज़ करें, इनोवेशंस की तरफ आए, कोशिश करें कि जो टेक्नोलॉजी है या जो डिजिटल वर्ल्ड है उनको पॉजिटिव वे में और फॉर द सेक ऑफ अर्निंग और लर्निंग यूज़ करें। देन हम आगे इजीली मूव कर सकते हैं और हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अजीज़ा सोले साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे जो इन्होंने बात की कि अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो ख़वातीन भी मर्दों के साथ उसी तरह काम करती हैं, इक्वल लेवल पे आके, तो इससे हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। ये बड़ा इनका एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। और सेकंड ये था कि उनको एक ग्रूमिंग का और अपब्रिंगिंग का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाती हैं, और ये एक ऐसा काम है जो आप रिमोटली घर में बैठ के भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये ख़वातीन को एक बहुत बड़ा एज है कि वो घर बैठ के अर्निंग भी कर सकती हैं, चीज़ों को सीख सकती हैं, अपने आप को डेवलप कर सकती हैं, ग्रूम कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।